أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبینا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 174 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن پاک آ چکی ہے اور اس کی وضاحت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لا چکے ہیں۔ گویا آپ کے پاس زندگی گزارنے کا ایک واضح طور پر قانون جو ہے وہ اب موجود ہے۔ اب آپ اپنی زندگی اس قرآن و سنت کے مطابق گزار کے دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لو۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے تمام لوگوں کو، نہ کہ ایمان والوں کو، تمام لوگوں کو اللہ کا حکم ہے۔ دنیا میں جو بھی انسان بستا ہے سب کو اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد تحقیق، جاءکم، آ چکی تمہارے پاس، برہان، واضح روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا، اتارا، الیکم، تمہاری طرف، نور یعنی قرآن پاک، نورم مبینہ، مبینہ کا مطلب واضح طور پر یا یعنی کھلم کھلا، یعنی راہ دکھانے والا، جو صراط مستقیم دکھانے والا کھلم کھلا اللہ کا ایک قانون آ گیا۔ تو ارشاد ہوا، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تحقیق تمہارے پاس واضح روشن دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور ہم نے آپ کی طرف صاف صاف راہ دکھانے والا نور یعنی قرآن پاک نازل کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قرآن پاک اور برہان، یہاں پر دو باتیں آئی ہیں، نور اور برہان۔ نور کون سا ہے؟ قرآن پاک ہے، جو کہ ہمارے لیے اللہ کا ایک واضح قانون ہے، اور اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا۔ تو قرآن پاک فرقان ہے، فرق کرنے والا ہے، کفر اور شرک کی تاریکیوں میں فرق کرتا ہے، ہدایت کا نور ہے، گمراہی میں صراط مستقیم ہے، اور اللہ کی رسی ہے۔ جو اس کا ایک سرا تھام لیتا ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے۔ نور سے مراد یہی قرآن پاک ہے، کیونکہ اس کے ساتھ لفظ انزلنا آیا ہے۔ اتنا قرآن پاک ہر مسلمان کو یاد کرنا ضروری ہے، جو 5 نمازوں میں پڑھا جائے۔ قرآن پاک کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پاک کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنے میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے دعا مانگنے کا بھی خیال نہ رہے، تو اسے اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اس طرح قرآن پاک کی دوسری کتابوں پر عظمت
है, कायम है। यानी कुरान पाक की अज़मत दूसरी किताबों पर कायम व दायम है। मस्जिद में जाकर अगर आप 2 आयतें याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये 2 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी देने से भी बेहतर अमल है। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है। कुरान पाक का माहिर जो होता है ज़मीन पर, वो अल्लाह का फरिश्ता है और उसकी शान अल्लाह के अजीम फरिश्तों की तरह है। अगर कोई शख्स ज़बान से कुरान पाक के अल्फाज सही अदा नहीं कर सकता तो उसके लिए दोहरा अजर लिख दिया जाता है। कुरान पाक ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, कल्बी बीमारियों के लिए शिफा है। जिस घर में कुरान पाक पढ़ा जाता है, शयातीन और जिन उस घर से निकल जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मिसवाक, रोज़ा और तिलावत कुरान पाक कुव्वत हाफ़ज़ा को तेज़ करते हैं। जो शख्स कुरान पाक को समझ कर पढ़ता है, फिर उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी कुरानी अहकाम के मुताबिक बना लेता है, उसके वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगी। माशाअल्लाह। वालिदैन को क़यामत के दिन एक ताज पहनाने के लिए कम अज़ कम आप कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, अमल करें उस पर, और अपनी ज़िंदगी कुरान और उसकी वजाहत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक कर दें। यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बना लें। जिस घर में कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता, शयातीन उस घर में दाखिल हो जाते हैं और अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते और अल्लाह की तरफ से जो हिफाजत के फ़रिश्ते होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। कुरान पाक की 10 आयात पढ़ने से दुनिया में तमाम जो चीज़ें हैं उनसे भी बढ़कर बंदे को सवाब मिलता है। मौत को कसरत से याद करना और तिलावत कुरान करते रहना दिलों के जंग धो देता है। कुरान पाक का पढ़ना सुन्नत है और इसका सुनना फ़र्ज़ है, वाजिब है। कुरान पाक और रमज़ान क़यामत के दिन अल्लाह के हजूर शिफात करके लोगों को जन्नत में ले जाएंगे, क्योंकि रमज़ान की जो अल्लाह ने बरकतें और रहमतें और फजीलत रखी है वो कुरान पाक की वजह से है। क्योंकि कुरान पाक को शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, तो अल्लाह ने कुरान पाक को रमज़ान में ही उतारा है और इसकी वजाहत कुरान पाक की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, आपकी तरफ से बुरहान आ गई। बुरहान का मतलब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुरान पाक की वजाहत हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरान पाक की मुकम्मल वजाहत और तफसीर है, इसी को बुरहान कहते हैं। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक और अखलाक हसना के बारे में बताएं, तो उन्होंने फरमाया, क्या आप लोगों ने कुरान पाक नहीं पढ़ा? अगर कुरान पाक में नमाज का जिक्र है, कितनी रकातें हैं, कितनी नमाजें हैं, नमाजों में क्या पढ़ना है, तो ये कहाँ से मिलेगा? तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगा, क्योंकि बुरहान है, वजाहत है कुरान की। कुरान पाक में ज़कात का जिक्र है, लेकिन वजाहत कहाँ मिलेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कितनी देनी है और किस किस को देनी है और क्या, ये यानी कुरान इसकी मुकम्मल वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। कुरान पाक में रोज़े का जिक्र है कि रोज़े रखो। अब रोज़े के फ़राइज़ क्या हैं, वाजिबात क्या हैं, सुन्नतें क्या हैं, रोज़ा किन किन चीज़ों से टूटता है, और इसका पता तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलता है, क्योंकि आप कुरान पाक की बुरहान हैं, यानी वजाहत हैं। इसलिए बुरहान भी आ गया, नूर भी आ गया, कुरान भी आ गया, उसकी वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका पता चलता है। हज करने का हुक्म कुरान पाक में आया है, मगर अरकान और इसके हज के क्या अरकान हैं, अदायगी किस तरीक़ा कार अदायगी के क्या है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। पूरी ज़मीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए मस्जिद का दर्जा दे दिया गया। पानी ना मिले तो वज़ू की बजाय
तयम्मुम करने का हुक्म दिया गया। ये सब चीज़ें पहली उम्मतों को नहीं मिली। लैलतुल कद्र जैसे है वो पहले उम्मतों को नहीं मिली, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अता हुई है। ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें ये पहली उम्मतों को नहीं मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई हैं। सूरह फातिहा जो है ये हर नमाज में पढ़ते हैं, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही अता हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरहान है, कुरान पाक नूर है, इसलिए कुरान और सुन्नत लाजिम मलजूम है। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें कुरान पाक अता फ़रमाया, उसकी वजाहत की अमली शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया। ये अल्लाह ताला की 2 बड़ी नेमतें हैं, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने नेमत फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना, कि मोमिनों पर ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें भेजा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक ये जो है अल्लाह ताला का हम पर बड़ा एहसान है। कुरान और सुन्नत को अपनाएं, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलाएं और अल्लाह के शुक्रगुज़ार बनें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना दे और इसी के साथ हम दुनिया में रहें और इसी के साथ ही दुनिया से रुखसत हों। अल्लाह ताला तौफीक दे, आमीन।